بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سوری، یہ پچھلی رکوع کی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے آئے ہیں، جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، اگلے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو قتال پر آمادہ کرو، جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کرو۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جہاد ختم ہو گیا ہے، مسلمانوں کا رعب دنیا سے اتر گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ تمہیں جنت کی امید ہے، ان کو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح یا شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا دنیا جہان میں ہر چیز سے افضل ہے۔ آج اگر آپ اپنی نیند کو حرام کر کے یہاں بیٹھے ہیں، دین کو خراب کر کے، اپنے آرام کو خراب کر کے، اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ بھی آپ کا جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ یہ جہاد ہے نفس کے ساتھ، اور یہ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ نفس کے ساتھ کیا گیا جہاد سب سے مشکل ترین اور سب سے بڑا جہاد ہے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، اِن یکم منکم عشرون صابرون۔ پہلے تو ان کو آمادہ کرو کہ وہ قتال کریں، وہ جنگ کریں۔ اِن یکم منکم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ صبر کر کے میدان جنگ میں ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، صرف 20 کا 200 سے مقابلہ۔ اور اگر وہ 1000 کافروں پر، اور پھر کیا فرمایا، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ یعنی مسلمانوں کا ایک مجاہد 10 پر بھاری ہے، اور 100 مجاہد 1000 پر بھاری ہیں۔ لیکن وہ اس سبب جب وہ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ ایک کے 10 پر غالب ہونے کا سبب یہ ہے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، وہ قتال کا مقصد نہیں سمجھتے، وہ دنیا کے غلبے کے سوا کچھ نہیں جانتے، وہ موت سے ڈرتے ہیں، جبکہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اے مسلمانوں اس جنگ کا مقصد سمجھتے ہو، یہ جنگ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے، اور میں تمہیں غالب لاؤں گا۔ کافر دنیا کے حصول کے لیے جنگ کرتا ہے، اور جبکہ مسلمان آخرت کے حصول کے لیے جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، اس لیے اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے اس حکم میں تخفیف کر دی۔ کیا کی؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ۔ چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ ثابت قدم رہنے والے 100 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 2000 پر غالب آئیں گے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آ جانا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری،
मुश्किल गुजरी। जबकि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर ये फर्ज किया है कि एक मोमिन 10 काफरों के मुकाबले में से ना भागे। यानी कि एक मोमिन अगर मैदान जंग में खड़ा हो तो वो दस दस काफरों से जंग करे। उनको परेशानी हुई कि हम इतने कम 10 काफरों को कैसे मार सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में तखफीफ कर दी और फरमाया कि कम से कम 100 को 200 के मुकाबले में जरूर गालिब आना चाहिए। चनाचे जब अल्लाह ताला ने शुमार में कमी कर दी तो इतना ही मुसलमानों में सब्र भी कम हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम्हारा सब्र कैसा है। वल्लाहु मअस साबिरीन। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया, अब एक मुसलमान 2 काफिरों के मुकाबले से भागना जायज नहीं और ज्यादा के मुकाबले से हट जाना जुर्म भी नहीं। यानी कि ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, तो फिर अगर वो वहां से हट जाए मैदान जंग से, यानी कि उनसे पीछे हट जाए, तो फिर उसमें कोई जुर्म नहीं होगा। पहले कहा था कि अगर 10 होंगे, तुम अकेले खड़े हो मैदान जंग में, तो तुम उनसे मुठभेड़ करो, लाजमन लड़ो। वल्लाहु मअस साबिरीन। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को ही नुसरत अता करता है, सब्र करने वालों की तायीद करता है, उनकी मदद करता है। मा काना ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنया। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब से रवायत है कि गज़वा बदर में जब कैदी गिरफ्तार कर लिए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुशावरत की, इन कैदियों से मुतलिक तुम्हारी क्या राय है। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, ये हमारे चचाजाद भाई हैं और हमारे ही खानदान ही के लोग हैं। सो मेरी राय तो ये है कि इनसे फिदिया ले लिया जाए ताकि इस रकम से कुफार के मुकाबले में हमें कुव्वत हासिल हो। और क्या अजब कि अल्लाह ताला इन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने खत्ताब, उमर बिन खत्ताब से कहा, तुम्हारी क्या राय है। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने कहा, अय अल्लाह के रसूल, मेरी राय सैयदना अबू बकर की राय के मुवाफिक नहीं है। मेरी राय तो ये है कि आप इनको हमारे हवाले कीजिए ताकि इनकी गर्दनें उड़ा दें। अकील को सैयदना अली के हवाले कीजिए ताकि वो उसकी गर्दन उड़ा दें, और मेरे हवाले फलां को कीजिए ताकि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। इसलिए कि ये लोग कुफ्र करने वाले और उसको बढ़ाने वाले हैं और उसके सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर की राय ली और मेरी राय नजरअंदाज कर दी। फिर जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो मैं आया, क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठे रो रहे हैं। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे भी बताइए आप और आपके दोस्त क्यों रो रहे हैं, ताकि अगर मुझे रोना आए तो मैं भी रो। वरना कम से कम आप दोनों के रोने की वजह से रोने वाली सूरत ही बना लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस फैसले की मुशावरत की वजह से रो रहा हूँ जो तुम्हारे साथियों ने कैदियों के फिदिया लेकर छोड़ने के सिलसिले में मुझे दी थी। अब मेरे सामने उनका अजाब पेश किया गया जो उस दरख्त से भी ज्यादा करीब था, और आपके करीब एक दरख्त था। और अल्लाह इज्जा व जल ने ये आयत नाजिल फरमाई, मा काना ली नबिय्यिन अन यकूना लहू उस असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द। किसी नबी के लायक नहीं कि उसके पास कैदी हों यहां तक कि वो जमीन में काफिरों का खूब खून बहा ले। तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो और अल्लाह ताला आखिरत का सामान चाहता है। अल्लाह आखिरत चाहता है और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई बात ना होती जो पहले तय हो चुकी थी, तो उसकी वजह से जो तुमने लिया, तुम्हें बड़ा अजाब पहुंचता। ये अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा। तो सोचिए कि हम अल्लाह ताला के इतने गुनाहगार हैं तो हमारे साथ क्या मामला होगा। सो जो माल गनीमत तुमने हासिल किया है उसमें से खाओ, हलाल और पाक है। अलगर्ज, अल्लाह ताला ने इसके लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया। यानी यानी उन पर अपना पूरा रोब जमा दो, उनको मार डालो, उनको जमीन पर उनका खूब खून बहा दो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि बदर के दिन जंगी कैदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए। आपने सहाबा से पूछा, तुम्हारी इन कैदियों के बारे में क्या राय है। तो फिर ये पूरी हदीस बयान हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें हर एक को फिदिया देना
होगा, या उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, क्योंकि मैंने सुना है सिवाय सिवाय सुहेल बिन बीदा के, क्योंकि मैंने सुना है कि वो इस्लाम का जिक्र करता है। इस बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। मुझे उस दिन बहुत खौफ लाहक हो गया कि कहीं आसमान से मुझ पर पत्थर न बरसें। मैं इसी खौफ में मुबतला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय सुहेल बिन बीजा के और कुरान मजीद में सैयदना उमर की राय के मुताबिक ये आयत नाजिल हुई, मकान अली नबी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने यही कहा कि फिदिया लेकर उनको छोड़ना नहीं था बल्कि उनका खून बहाना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में फरमाते हैं, लौला लौला किताब मिन अल्लाह सबक लमस्सकुम फीमा अखज़तुम अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई बात ना होती, यानी अगर पहले ही से तुम्हारे लिए गनीमत का माल हलाल ना लिखा होता, और हमारा ये तरीका ना होता कि बयान करने से पहले हम किसी पर अजाब नहीं भेजते, तो कैदियों से फिदिया लेने पर सख्त अजाब अल्लाह ताला का आ जाता। लामस्सकुम किया लामस्सकुम फीमा अखज़तुम अज़ाबुन अज़ीम, जो पहले तय हो चुकी थी, तो इसकी वजह से जो तुमने लिया, तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता। बदर के दिन कैदियों से जो फिदिया लिया उसके बदले तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचता। यानी उस अजाब के सबब सैयदना उमर के सिवा कोई ना बचता। हजरत उमर फारूक की इतनी अहमियत, यानी कि अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, फिर किस तरह से हम उनके लिए बुग़्ज़ रख सकते हैं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन, सो जो माल गनीमत तुमने हासिल अब कर लिया है, ले लिया है उनसे, उसे उसमें से खाओ। रब्बुल इज्जत ने ये वाज़ेह कर दिया कि उम्मुल किताब में ये बात लिखी जा चुकी है कि मुसलमानों के लिए माल गनीमत हलाल है। अब उसको तुम हलाल तरीके से खाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। अब ऐसा ना हो कि इस माल गनीमत को पाकर तुम अल्लाह से डरना छोड़ दो, और ये समझो कि ये तुम्हारी अपनी ताकत की वजह से तुम्हें मिला है, बल्कि अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखकर नेक काम करो, उसका शुक्र अदा करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, और अल्लाह ताला की पैरवी करते रहो। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला कोताहियों को, गलतियों को माफ करने वाला है। रब कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कोताहियों और गलतियों को माफ फरमा दे। जो गलतियां हमसे हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब से दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब से राजी हो, आप सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए सीखना सिखाना आसान कर दे, हमारे लिए पढ़ना पढ़ाना आसान कर दे, हमारे लिए कुरान को वक्त देना आसान कर दे, इसके लिए उठना हमारे लिए आसान कर दे, हमें थकावट ना दे। अल्लाह ताला हमारे लिए काफी हो जाए। हम सबको सेहत अता फरमाए कि हम सेहत की हालत में, अपनी बेहतरीन हालत में, जिंदगी के इस हसीन तरीन लम्हात में अपने रब को राजी कर लें, अपनी सेहत की हालत में अल्लाह को राजी कर लें। अल्लाह ताला हम सबको मोहताजी की जिंदगी से महफूज कर ले। अल्लाह ताला इन औकात में हमसे वो काम ले ले जिससे मेरा रब राजी हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।